Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Smart Kid. Learn how to think, not what to think. To develop your child's intelligence, to help their brains grow by engaging them with hands-on materials. By our speaker, Dinesh Sethe. To encourage free play in a safe environment. To make your kid more smarter, our chairman, Shri Subhashji Parmar has inspired and guided us to engage with your child through conversation and social interaction, to develop a sense of social awareness and understanding from interaction with others. Let's begin with our today's interesting webinar. Good morning to everyone. I am Mrs. Nikita Soni on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School welcomes you all for our today's webinar, Smart Kid. Smart thinking helps one acquire new information in an effective and efficient manner to use that information to solve problems in a way that creates value for society and makes sense of the world around them. By understanding what intelligence means and how you can develop it in yourself, you will be able to dramatically increase your chances of becoming successful in life. Curiosity, passion, and desire to learn are key traits of highly intelligent kids. Keeping this in mind, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School have come up with this webinar, which will surely benefit all of us. Now, I request our viewers, if any queries, you all can feel free to write their questions in Facebook chat box. Now, I request our principal to kindly give her views on the working of our school. Over to you, ma'am. Thank you, Nikita. Good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to Vijay Vallabh Sunday Hour with an eminent personality, Dinesh sir, a counselor and a therapist. Every learning created for a child is another treasure for lifetime. We are blessed to have the company of children and assign a great responsibility to prepare and design future citizens. The task before us requires a lot of understanding, patience, loving, and caring attitude, and ability to accept each and every child with his individual differences. Each student have different ways of learning and different intelligence as they use in their daily lives. Students possess different kinds of minds, therefore learn, remember, perform, and understood in different ways. Thus, enhancing and understanding, we practice various activities like story reading, use of puzzles, presentation of scientific methods, use of concept, map, Pictionary games, create songs and rhythms, create melodies to learn concepts, activities that integrate independent learning, role play activities, etc. It helps our students in the development of various skills. I am thankful to our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, for the guidance and motivation. Thank you. Over to you, Nikita. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. After briefing by our principal, I feel proud to say that we at Acharya Shri Vijay Vallabh School are putting more efforts on preparing our children to be smart in a healthy way. Now, I feel privileged to introduce our today's guest, Mr. Dinesh Sethe, sir. Sir has served with MA, that is Master in Arts, and MPhil, that is Master in Philosophy. Sir is an educationist, certified therapist, and counselor working for last 5 years. He has done his Master of Philosophy in Psychology from Banaras Hindu University, India. He specialized in personality development, career counseling, and stress management. After completing his master's, he started his educational institute to help students find their preferred learning style, understand their potential, choose better career options, and develop their personalities. His institute has trained or guided more than 8,500 students through workshops and seminars via online offline sessions.
Recently, he launched a new platform, Abhivyakti Manifestation of Potential, which undertakes various online and offline activities to develop the personality of an individual. He hosts a bi-monthly online question-answer session, Ask Abhivyakti, to address mental health and psychology-related questions on YouTube and Facebook. Abhivyakti also undertakes healthy parenting and teachers training programs. Sir works on the development of emotional intelligence and life skills. He instantly builds a connection with students using his extraordinary communication skills and experience. He is very empathetic and optimistic. He is a certified therapist and helps people of any age to deal with stress, anxiety, depression, and mental disorders. Sir, we are really happy to have you with us today in our school. You're most welcome, sir. Now, I request our guest, Mr. Dinesh sir, to share his views with us today. Over to you, sir. Thank you. Good morning, everyone. सो आजचं जे आपलं सेशन आहे किंवा आजच्या स्मार्ट किड या विषयासाठी आपण सर्व इथे एकत्र आलेले आहोत. तर त्या विषयाबद्दल बोलत असताना माझं प्राधान्य याला राहील की जी भाषा आपल्या सर्वांना कळेल, ज्या भाषेत ते इझिली आपल्यापर्यंत पोहोचेल तितकं इझी करून तुम्हाला सांगावं. मुळात यासाठी सर्वात आधी मला शाळेचे आणि पूर्ण मॅनेजिंग कमिटीचे आभार मानावे वाटतात की गेल्या वर्षी सुद्धा आम्ही इथे एक वेबिनार घेतला होता आणि बरेचदा काय होतं, लॉकडाऊन मध्ये आपण नवीन उपक्रम सुरू करतो, पण जसं सगळं पूर्ववत व्हायला लागतं आपण हळूहळू ते बंद करतो. पण या शाळेने अविरत हा उपक्रम सुरू ठेवला आहे आणि पुन्हा एकदा आभार की दुसऱ्यांदा मला इथे बोलण्याची तुम्ही संधी दिलेली आहे. तर अभिव्यक्तीबद्दल सांगत असताना आता मॅडमनी सांगितलं की आम्ही मॅनिफेस्टेशन ऑफ पोटेन्शियल कडे लक्ष देतो. तर हे दोन शब्द खूप महत्वाचे आहेत. एक स्मार्ट किड काय असतं किंवा एखाद्या मुलाला आपण स्मार्ट कधी म्हणतो, त्या मुलामध्ये कुठले गुण असावे, नेमकं इंटेलिजन्स म्हणजे काय, याच्या व्याख्या आतापर्यंत अनेक लोकांनी केलेल्या आहेत. पण मला त्यामध्ये सगळ्यात जास्त पटलेली व्याख्या जर कोणाची असेल तर ती आहे थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांची. आइन्स्टाईन म्हणतात की प्रत्येक व्यक्ती जी आहे ती जीनियस आहे, पण जर तुम्ही एक मासा आहे, एक फिश आहे, त्याला जर एका ट्री वरती क्लाइंब करायच्या अबिलिटीने जज कराल तर तो प्रत्येक वेळेला त्याला काय समजेल, स्टुपिड समजेल. सो मी पुन्हा एकदा सांगतो की जसं मी म्हंटल सगळ्यांना कळेल ही लँग्वेज. सो हियर बायलिंग्वल, हिंदी, इंग्लिश आणि जिथे कठीण जाईल असं मराठी, असं आपण करूयात. सो आइंस्टाइन के बारे में अब जब सोचते हैं तब हमारे सामने एक बात आती है कि आइंस्टाइन ने अपने राइट ब्रेन के वक्त जो कुछ बातें कही थी उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि हर एक पर्सन जो है वो जीनियस है. बट अगर आप किसी फिश को एक ट्री के ऊपर क्लाइंब करने के लिए कहते हो कि एक फिश है, उसने ट्री के ऊपर जाना चाहिए, सबसे ऊपर पहुंचना चाहिए और सबको हाय हेलो करना चाहिए, अगर ऐसा हम सोचने लगते हैं तो हम सबसे बड़े स्टूपिड है और वो फिश भी खुद को स्टूपिड समझने लगेगा कि अरे मैं तो कितना बुद्धू हूं, मैं तो एक ट्री पे भी नहीं चढ़ पाया. तो सच में अगर हम सोचते हैं तो क्या वो फिश स्टूपिड है? नहीं, फिश तो पानी में अच्छे से तैर पा रहा है, अपने आप को फीड कर पा रहा है, पानी में अपने खाने के लिए या लिविंग के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो ढूंढ रहा है. तो वैसे ही हर एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट ही होता है. बट क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसे जैसे एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे उनकी थॉट प्रोसेस बिल्ड होती है, उस अकॉर्डिंग उनकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होने लगती है. तो हमेशा हम याद रखेंगे कि हर पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है. बट अब इसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे डेवलपमेंट, ये कभी हम नहीं कह सकते कि कोई कंट्री, कोई पर्सन या फिर कोई भी चीज फुल्ली डेवलप्ड है. हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए एक स्कोप होता है, और जब हमें इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्कोप चाहिए होता है तब हम पहली चीज क्या करते हैं, तो स्केल ढूंढते हैं. राइट? अब समझिए मेरे पास एक छोटा सा वाटर बॉटल है और वो हाफ फिल्ड है, 500 ml वाटर उसमें है. तो अब वो हाफ फिल्ड है ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब उस पर मार्क्स होंगे कि ये 100 ml है, 200 ml, 500, 1000. तो अब मुझे क्या पता चला, मेरी बॉटल 500 ml भरी हुई है. तो अब मुझे क्या करना है, उसमें और 500 ml लिक्विड डालना है. राइट? तो ऐसे ही एक डेवलप पर्सनालिटी में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो स्केल ढूंढनी पड़ती है कि हमें डेवलप कितना होना है. तो उस स्केल के लिए हमने क्या किया है, तो एक थियरी को अडॉप्ट किया है जो बच्चों के इंटेलिजेंस को एक स्केल दे सके. तो इस इंटेलिजेंस थियरी को हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी.
ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी 1994 में डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जो है हर एक पर्सन में 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं और ये 8 इंटेलिजेंस उनमें अलग अलग रेशो में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे हम किसी भी चीज को डेवलप कर सकते हैं वैसे ही हम इन इंटेलिजेंस को भी एफर्ट्स लेकर और कंसिस्टेंसी से डेवलप कर पाते हैं। तो सबसे पहले इन 8 इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। तो इंटेलिजेंस की ऐसी कोई स्पेसिफिक तस्वीर तो हम दिखा नहीं सकते, सो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो इसलिए उन इंटेलिजेंस के अंदर आने वाले कुछ फेमस पर्सनालिटीज बताता हूं। जैसे अब आपके सामने कुछ फेमस पर्सनालिटीज है जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई था, जिसमें आप फर्स्ट देख रहे हैं विश्वनाथन आनंद चेस मास्टर और दूसरे हैं शकुंतला देवी जी, हमारी ग्रेट मैथमेटिशियन। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस जिनका ज्यादा होता है तो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। इनको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर शॉर्टकट फॉर्मूलेस बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी है ना, वो भी बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने शकुंतला देवी मूवी देखी होगी, तो आपको याद आ रहा होगा कि विद्या बालन ने रोल प्ले किया था जिसमें देखा था कि वो ऐसे बोलते बोलते ही कोई भी सम सॉल्व कर देते। तो इसके बाद जो इंटेलिजेंस आता है वो इंटेलिजेंस है हमारा विजुअल इंटेलिजेंस। अब विजुअल से आपको पता चल गया होगा कि इनकी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती होगी। तो ये किसी भी पिक्चर को अच्छी तरह से समझते होंगे या फिर बहुत ज्यादा ड्राइंग पेंटिंग डिजाइनिंग ऐसे फील्ड्स एक्सप्लोर करते होंगे। मोनालिसा के क्रिएटर लियोनार्डो दा विंसी हो गए या फिर ग्रेट कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जो बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं। उसके बाद आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब इंफॉर्मेशन या नॉलेज तो होता बहुत लोगों के पास है, बट बहुत बार क्या हो जाता है लैंग्वेज की वजह से हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हमारे पिक्चर्स है जो बहुत कम लोगों को पता है कि ये कौन है। सो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एक बंगाल में जन्मे हुए एक बहुत अच्छे लैंग्वेज पर प्रभुत्व रखने वाले पर्सन थे जिन्हें अराउंड 19 लैंग्वेजेस आती थी और लंदन में जाकर उन्होंने इंडो एशियन लैंग्वेजेस पर स्टडी अलग से किया था। उसके साथ साथ है पीबी श्रीनिवास जी, जो यहाँ पर पेरेंट्स है या किसी के अगर ग्रैंड पेरेंट्स ये सेशन देख रहे होंगे तो उन्होंने इनके सॉन्ग्स जरूर सुने होंगे। तो अराउंड 9 लैंग्वेजेस में ये सॉन्ग्स और पोएट्रीज लिखा करते थे, बहुत फेमस लिरिसिस्ट थे। तो इसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन। अब ये जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं या ये हमेशा सामने वाले के नीड्स को समझने वाले होते हैं, बहुत अच्छे से वर्बली कम्युनिकेट कर पाते हैं। इनको उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है। बाबा आमटे जी को हम सब जानते ही है उनके सोशल वर्क के बारे में कि सामने वाले को जो दिक्कत आ रही है उसको अच्छे से समझ लेना करना, यानी एम्पैथी उनके पास बहुत अच्छी है। दूसरे हैं हमारे गौर गोपाल दास जी, आजकल इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पर या यूट्यूब पर हम इनके वीडियोस देखते ही आ रहे हैं। तो ये सामने वाले के नीड को समझकर उनके लैंग्वेज में आंसर देते हैं। अगर सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसे जिस लैंग्वेज में समझ आए और वही 50 इयर्स का है तो उनको जिस लैंग्वेज में समझ आए। उसके बाद आते हैं इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं उनको खुद की एबिलिटीज बहुत अच्छे से पता होती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, मुझे कौन सी चीजें अच्छे से करनी आनी चाहिए और कौन सी चीजों पर फोकस करना जरूरी है। तो स्वामी विवेकानंद जी हो गए या योगी अरविंद जो ऑरोविल के हेड थे जिन्होंने ऑरोविल की एस्टैब्लिशमेंट की थी। देन आता है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ब्रेन का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी कितनी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, दोनों एक्शंस कितने सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, ये आता है इस इंटेलिजेंस के थ्रू। अगर ग्रेट एग्जांपल लिया जाए तो पीटी उषा हो गई, हम सब उन्हें जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज हो गए जिनका इस जनवरी 17 को देहांत हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज एक बहुत अच्छे कथक डांसर थे, उसके साथ साथ वो एक कंपोजर थे, सिंगर थे। अपने बॉडी को कुछ इस तरह वो मूव करते थे कथक करते हुए कि उनके अदाकारी के लिए लोग उन्हें देखते रह जाते थे, वो एक लाइव मेडिटेशन की तरह होता था। और जो इसके बाद इंटेलिजेंस आता है, इसके दोनों चेहरे तो बहुत अच्छी तरह से हमें नोन है। जगदीश चंद्र बोस ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि प्लांट्स है जिनमें भी जान होती है वो भी फील कर पाते हैं। और दूसरी है हमारे पद्म पुरस्कार प्राप्त तुलसी गौटा जी। तो इन्होंने क्या किया, तुलसी जी ने एक कर्नाटक के होनाली नाम के छोटे से विलेज से ये है, बट सिंगल हैंडेडली 30,000 प्लांट्स इन्होंने वहां पर बोए थे और आज अराउंड 30,000 ट्रीज उसके हो गए हैं। खुद के बच्चे की तरह इन्होंने उसे संभाला है। तो इसके लिए ये जो पर्सनालिटी है नेचर की तरह या ट्रीज की तरफ जो लगाव होता है वो हमारे नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस में आता है।
और जो लास्ट है इनमें ये दो नाम है जिनके लिए मैं कुछ ना कहूं तो भी चलेगा। ए आर रहमान जी, जो हमारे सबके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है, जिनकी वजह से हम ऑस्कर तक जा पाए, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये हर चीज के पीछे के रिदम को समझते हैं। रहमान जी के पहले तक इंस्ट्रूमेंट में सॉन्ग्स के पीछे जो म्यूजिक होता था ना, वो ठीक है थोड़ा सा मेलोडियस लगता था, बट रहमान जी ने फर्स्ट टाइम कुछ इनोवेशन किया। शंकर महादेवन जी है, जिनके म्यूजिकल के किसी भी सॉन्ग के मेमोरीज को अच्छे से समझना और उस सॉन्ग को अच्छे से म्यूजिक देना, तो इन सब इंटेलिजेंस इन पर्सन में था। अब ऐसा हम कह सकते हैं कभी कि शंकर महादेवन जी जो थे, उन्होंने तो देखा जाए तो वो एक आईटी कंपनी में जॉब के लिए थे, राइट? तो आईटी कंपनी का अच्छा जॉब छोड़कर वो तो म्यूजिक फील्ड में चले गए, तो वो स्मार्ट नहीं थे, ऐसा हो सकता है। या फिर तुलसी गौड्डा जी तो कभी स्कूल ही गई नहीं है, तो हम स्मार्ट किड नहीं या स्मार्ट पर्सन नहीं कहेंगे क्या? तो स्मार्टनेस की जो हमारी डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी सी चेंज करना बहुत जरूरी हो गया है। हर पर्सन के पास कोई ना कोई स्मार्टनेस होता है, इंटेलिजेंस होता है। बस उस इंटेलिजेंस की ओर वो कैसे वर्क करते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये 8 इंटेलिजेंस हो गए। जस्ट इसमें कुछ इंटेलिजेंस और ऐड होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है, तो इंटेलिजेंस भी ऐड होते रहेंगे। मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि डिजिटल इंटेलिजेंस इसमें ऐड हो रहा है, कि जितना अच्छे से हम इन सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स को हैंडल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, वो भी एक इंटेलिजेंस ऐड होने वाला है। टीचिंग एक इंटेलिजेंस है, जो आपको आता है वो दूसरे को सिखाना भी इंटेलिजेंस होता है, वो इसमें ऐड होने वाला है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वो ऐड हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस के स्केल्स है जिससे हम सब स्मार्ट है ये पता चलेगा। सेशन में कुछ एक्टिविटीज थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टनेस को हम डेवलप कैसे करते हैं। सो एज ऑफ नाउ एक इंटेलिजेंस की आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि जो आपके पास अच्छा है उस पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करना, आगे लेकर जाना, यही इंटेलिजेंस या स्मार्ट किड का जो है पहला प्रमाण होता है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your views and sharing your experiences with us. Now, sir will take an activity session with our children. Over to you, sir. सो एक्टिविटीज के बारे में अब बहुत बार जैसे मैंने अभी व्यूज के वक्त कहा कि कुछ एक्टिविटी बेस से हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने क्या किया है कि इंटेलिजेंस के लिए, समझने के लिए, और कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। ये पिछले 2 साल से मैं डिजिटली इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट उसके पहले तो बच्चों के साथ मिक्स होकर काम करना पसंद था। तो आप अभी शायद देख पा रहे होंगे कि आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट के चेहरे आप देखते हो तो थोड़े से एंग्शियस से स्ट्रेस्ड फील हो रहा है कि अब क्या होने वाला है, क्या एक्टिविटी सामने आएगी। अब हम देखेंगे कि इनमें मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कैसे अलग अलग लेवल्स में पाए जाते हैं। तो हम कुछ इजी एक्टिविटीज से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स है, उनके भी घर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी ये सारी एक्टिविटीज हमारे साथ कर सकते हो। अब पहला जो गेम हम खेलने वाले हैं, हम इसे गेम ही कहेंगे। इस गेम में हम क्या करेंगे, तो एक छोटी सी डिश आपके सामने है। उस डिश में टोटल 8 मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार किए हैं, और उस टॉपिक्स को क्या करेंगे, ये बच्चे एक एक चिट उठाएंगे, और उस चिट में जो भी सब्जेक्ट आएगा उस पर केवल 5 सेंटेंसेस ये कहेंगे। ओके, अब ये कौन से टॉपिक से, ये इनको मैंने बताया नहीं है। अब कौन सी चिट मेरे हाथ में आने वाली है, ये बिल्कुल पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी का राउंड ले लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, आप कोई भी एक चिट उठाइए आपकी फेवरेट। टॉपिक क्या है, slowly unfold it. Farmers are important because they give us food, fruits, agriculture. So they are important. They grow food, vegetables, fruits,
and many type of nutrients. So they are directly our doctor. So we can say that they are important, and and they and they cover our health nutrients such that vitamin C, vitamin D they give us from their food, agriculture, vegetables, etc. So they are important. Very good. Okay. Next. The best day of my life. On my 10th birthday, it was a big party, so it was a best day of my life. Many friends have come. We have gone for the party and we enjoyed very much. यस बेटा, आप उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए. They have bring me a very big cake on my birthday, on my favorite character. And anime Naruto, and we have celebrated it. Just 1 more second. Very good. Excellent. My dream vacation. My dream vacation is Paris. I want to go there after my education, and if I get a chance, I would learn there after my 10th, and I can do my career also in Paris. So my dream vacation is Paris. If I got a chance, I may take my parents to a tour there. They would be very happy. Thank you. Save water. If we waste the water, there will be no water in the world. Then the future of the future of us will get destroyed. So please save the water and don't use very much amount of water. Use less water and help our world. Okay, very good. So ये जो एक्टिविटी हमने अभी देखी, ये एक्टिविटी किसी भी तरह प्लान नहीं थी. ये एक्टिविटी में इजीली उन्होंने स्पॉन्टानियसली चिट्स उठाई, जो भी उनके मन में आया वो बताने की कोशिश की. बट अब आपने ऑब्जर्व की कुछ चीजें, जब ये बात कर रहे थे तब ये थोड़ा सा डर गए थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे. अब मुझे सामने जो टॉपिक आया है उस पर मुझे बात करनी है. अब ये जो सेशन है तो लाइव हो रहा होगा, तो मेरे सारे दोस्त देखेंगे. अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा जो फियर है ना वो हमें सताने लगता है. फिर दूसरा क्या होता है, सेकंड थिंग जो हमें सताती है वो है कि अगर अरे सबके सामने अगर मेरा पचका हो गया, तो आजकल ये पचका वर्ड बहुत फेमस हो गया है ना बच्चों. तो क्या हो जाता है, ये बच्चे ऐसे में क्या करते हैं, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, अपने स्टेज डेयरिंग को बढ़ाने के लिए जो खुद के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज है, उन्हें साथ में यूज करते हैं. तो ऐसे सिंपल एक्टिविटीज से हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों के पास जो स्पॉन्टेनिटी है उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों का स्टेज डेयरिंग बढ़ाते हैं और साथ ही साथ में कोई भी नया चैलेंज आए तो उससे कोप करने की जो एबिलिटी है वो हम बढ़ाने लगते हैं. अब हम धीरे, जैसे एक सिंपल एक्टिविटी थी ऐसे ही और एक एक्टिविटी करेंगे. अब इस एक्टिविटी में मैं क्या करने वाला हूं, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि मैं थोड़ा सा खड़ूस हूं, मैं थोड़ा ही खड़ूस हूं. तो अब क्या करेंगे, मैं बच्चों से है ना एक इजी टास्क करवाने वाला हूं.
अब इस टास्क में होने क्या वाला है, बच्चे बातें करने वाले हैं। आजकल बच्चों को बैक बेंच पर बैठकर बातें करना अच्छा लगता है ना, तो आज उन्हें स्पॉटलाइट में बातें करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्टोरी जो है वो स्टोरी रन करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहां से बच्चों को एक लाइन बताऊंगा और एक कोई भी मेरे लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन बोलेगा, ऐसे ही सीक्वेंस कंटिन्यू होगा। इनकी स्टोरी खत्म होगी तो जो मैंने मॉरल कहा था वो मॉरल जो है वो स्टोरी में से रिफ्लेक्ट। सो आपकी फर्स्ट लाइन है, देयर वॉज अ ट्री। इसमें से देना है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। Near the tree there was a village. From there, the farmers go to there and cut the trees for their work. And the farmers cut that tree and sell in the market. And after they sell in the market, we take and we use them. First, Okay. Then the three children see that and they stop to him, but the farmers just doesn't listen. What you said? Farmers doesn't listen to the children. सो अब देखिए यहाँ पर हम रुक गए, क्यों रुक गए, तो हमें ना आजकल इंटेलिजेंस यानी आईक्यू वाली बात। अब देखिए यहाँ पर हम रुक गए, क्यों रुक गए, तो हम में ऐसे आता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जब बातें आती है टीम वर्क करने की, तो हम ना अच्छे से सुनते हैं, वी आर एन गुड लिसनर्स, या फिर हमने थोड़ा सा क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिया है। ओके, अब सोचिए यहाँ पर तो स्टोरी अच्छे से बन गई। अब स्टोरी के आगे जाने के लिए इस स्टोरी को आप चारों में से कौन कंप्लीट कर पाएगा अकेले। यहां तक जो स्टोरी आई है उस स्टोरी को कौन अकेले कंप्लीट करेगा, कौन लेगा इसको। यूनिटी स्ट्रेंथ में अगर हमें ले जाना है तो कौन कर सकेगा, एनीवन। ऐसे समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा टास्क और कंप्लीट करना है। एनी टीचर, मैं फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूं तो टीचर्स भी कर पाएंगे। सो आता हूं मैं इस चीज की ओर। ये बहुत से एक्सपेक्टेड चीजें होती है। देखो बच्चों, मैं आपकी किसी भी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस को कैसे अलग तरीके से ले जा रहे हैं। अब यही अगर आपके एग्जाम्स होते ना, तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स घर से आप लर्न करके आए होते, बहुत जल्दी जल्दी आप या फिर अच्छे ग्रेड्स लेकर आते। तो बहुत बार होता क्या है, हम तैयार नहीं होते किसी चैलेंजेस के लिए। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये हमें चैलेंजेस के लिए तैयार करती है। अब यहां पर क्या हुआ, फिर से हम में क्या आ गया, फियर आ गया, राइट। अब आपके लिए ना थोड़ी सी इजी एक्टिविटी देता हूं, राइट, और इसके कंक्लूजन की ओर मैं आपको बताता हूं। अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, तो आपके सामने एक छोटा सा मैं इमेज दिखाऊंगा। ओके, उस इमेज को आपने अच्छे से देखना है, और देखते देखते उस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करके मुझे डिटेल्स बताने की आप कोशिश करोगे। ठीक है, आप सबको पिक्चर देखने के लिए आप रेडी हो? ठीक है, आपके स्क्रीन में पिक्चर जो है आपको दिखने लगेगी। ये आपको पिक्चर विजिबल है, आराम से एक एक ने हाथ में लीजिए और बताने की मुझे कोशिश करनी है। The picture. Most of the children are playing here. Some senior citizens are walking, and some birds are flying in the sky. The trees are behind it. Some rabbits are running. The dogs are barking. One boy is playing the ball. Some are seeing with binoculars. They are seeing flowers. Some are sitting in the picture.
This is the picture. नेक्स्ट वन, सेम इमेज को ही ऑब्जर्व करेंगे, जो डिटेल्स इन्होंने बताए नहीं वही हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नई डिटेल्स बताने की कोशिश कीजिए। There is a lake and a pond behind. One children is practicing for cycling. Some children are playing with football. Here one girl is sitting and eating the ice cream. There one girl is come with their dogs for a walk. वेरी गुड, नेक्स्ट वन। There is one big flower. And a small plant in the garden. One old lady is come with her granddaughter for a walk. There is a river behind. There are rocks. One girl is sitting on the rock. The girl is walking with their dogs. There is a one children is learning how to trees. Speak, children. The ducks are swimming in a lake. ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब बच्चों को एक इमेज जो इन्होंने कभी भी नहीं देखी है वो जब दिखाई तो ये थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो जो भी दिख रहा है वो डरते डरते बताने की कोशिश की। अब बताया तो सबने, बट सबके चेहरे ऐसे थे जैसे कि मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड है, बच्चे डर, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो दिनेश सर वहां से कुछ तो कर देंगे। सो क्या होता है जब हम कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ कंडक्ट करते हैं, जिसे हम स्मार्ट किड कंसेप्ट कहते हैं, उस कंसेप्ट में हमें एक्सपेक्टेड क्या होता है कि हर बच्चा क्रिएटिवली थिंक करे, खुद के वे से थिंक करे, राइट। लिसनिंग स्किल्स तो अच्छे हो, साथ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। अब हम क्या करेंगे, बच्चों के क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा स्कोर लेंगे, एक छोटी सी टेस्ट लेंगे। अब इस टेस्ट में क्या करेंगे, बच्चों आपने इमेजिन करना है कि आप एक सुपर हीरो हो एक दिन के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे सुपर हीरो बनकर क्या करने वाले हो, आपका एक दिन कैसे होगा। ओके, लैंग्वेज का कोई भी बंधन नहीं है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, कोई वर्ड आपको एकदम से ऐसे सूझ नहीं रहा है, तो आप हिंदी या किसी भी नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकते हो। रेडी? अब ऑल द बेस्ट। अब जरा बच्चे सुपर हीरो से बहुत क्लोज होते हैं ना, शायद अच्छे आंसर्स मिल जाए। I would sacrifice my life to save anyone. If I were a superhero, I would reserve all the restrictions made by men on the environment, his surroundings, and his fellow men. I would also send positive energy so that every person can be enlightened to never repeat these sins again and be the best that he could possibly be. Thank you. Yesterday morning, I was watching a anime episode Naruto. I wondered how these superheroes get powers. They can make their own clones and all. If I would be a superhero Naruto, I would save everyone's life from attacking, bullying, and many other things. I would sacrifice my life to save somebody who is in danger. I would also stop criminals and villains to enter the city. I will send positive energy so that the people who have intentions to do bad things, they will not
repeat this since again I would never show my identity. Thank you. I don't have my superhero as an idol, but I have imagined a superhero that he would do the things like he would save the planet, he would help the people, being kind to the people, and if he would be selfish, he would do his homework, household chores, and his work using his powers. If I would be a superhero, I would be a Spider-Man. But to impress everyone is a hero. His his superpowers are very amazing and exciting. If I would be the superhero, I would save the city and I would save the people from the entities. It has a super amazing power, that is, he can go anywhere with the web. He is a character in the Marvel. I would be a superhero. I would be uh, attentive in the city. I would never be aggressive to the people. Thank you. ओके किड्स, थैंक यू वेरी मच. सो यहाँ पर ना आप सबने देखा होगा कि जब इमेजिनेशन की बात आई ना तो बच्चे थोड़े से अच्छे से बता पा रहे हैं. जब किसी चीज को देखकर बताने की बात आई तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर पा रहे हैं. इनके बारे में अगर कहा जाए तो क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहे थे. तो ये इन बच्चों के बीच कोई कंपटीशन नहीं था. तो हम तो देख रहे थे कि ये बच्चे एकेडमिक्स छोड़कर जो हमारे लाइफ स्किल्स है, जो हमें एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत जरूरी है, उनमें कैसे परफॉर्म कर पाते हैं. तो अब बच्चों मैं ना आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस करने वाला हूं. ओके, अब ये भी एक्सरसाइजेस थोड़ी स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकती है. मुझे कॉपी करने की आप कोशिश करोगे. ओके, सिंपल है. जो मैं कर रहा हूं मेरे हैंड्स को फॉलो करने की कोशिश करना. गलती हो जाती है थोड़ा सा स्माइल करना. ठीक है, गलती हो गई ऐसे कह देना, फिर से स्टार्ट करेंगे. ओके, ओके. सो दोनों हाथ सामने, हाथों के रिस्ट बने हुए. क्या करेंगे, अपने एक ओपन पाम से दूसरे हैंड के फीस्ट को इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे. टीचर्स भी मेरे साथ कर रहे हैं, देखकर मुझे अच्छा लगता है. ओके, सिंपल है यहां तक. ओके, अब अपने पाम के एग्जैक्ट सेंटर में दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर से टच करना है. इंडेक्स यानी थंब के बाद वाली फिंगर. इजी. हाँ, मन में सोच रहे, इट्स वेरी इजी. अब थोड़ा सा खड़ूस हो जाता हूं हमेशा की तरह. फिर से दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां बनी हुई. एक हैंड का थंब ओपन करेंगे और दूसरे हैंड का लिटिल फिंगर. एक हैंड का थंब, एक हैंड का लिटिल फिंगर. एक बार लेफ्ट एंड देन अपोजिट. थंब लिटिल, स्लोली. थंब लिटिल. स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक एक फिंगर ओपन करेंगे. ओपन योर थंब, ओपन योर लिटिल, क्लोज, ओपन इट इन अनदर डायरेक्शन. थंब लिटिल, थंब लिटिल, थंब लिटिल. एक हाथ का थंब, एक का लिटिल फिंगर. कंफ्यूज नहीं होना है. यस, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा ना. अब और थोड़ा सा मुश्किल. एक हैंड के 2 फिंगर्स से जरा वी शेप बनाइए तो, और दूसरे हैंड के इंडेक्स एंड थंब से उसे पॉइंट करने की कोशिश कीजिए. इसे कहते हैं रैबिट एंड दिस इज योर गन. ओके, वी एंड पॉइंट इट आउट. वी कौन से 2 फिंगर्स से? चेहरे पे स्माइल. अब तो दोनों हाथ दिख रहे हैं, सबको पता है कि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है. रिलैक्स. थंब सिंपल है. थंब. ओके, रिलैक्स. अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये क्या करती है, हमारा ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है. अब इसी एक्सरसाइज में एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, बट फास्ट करने की कोशिश करेंगे बिना गलती के. ओके, एक हाथ नाक पर, दूसरा हाथ ऊपर से क्रॉस करते हुए अपोजिट ईयर को टच करना है. हैंड्स को स्विच करते रहेंगे. एक हाथ नाक पर और दूसरा कान पर. थोड़ा फास्ट, बिना गलती के. वेरी गुड. हाँ, अरे दोनों हाथ कान पर चले गए, कोई बात नहीं.
ये एक्सरसाइजेस जो है ना, ये आपके कोऑर्डिनेशन को एनहांस करती है। ओके, हैंड्स डाउन। अब देखिए, ये जो एक्टिविटी थी ये तो आपने बहुत अच्छे से कर दी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको प्रेशर नहीं था कि मेरी गलती हो जाती है तो क्या होगा, राइट? क्योंकि बीच में शायद मेरी भी गलती हो सकती है, आपके साथ सबकी गलती हो सकती है। सो ये एक्टिविटीज से हमने क्या किया या क्या समझने की कोशिश की कि हम पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट जब बातें आती है बाकी के इंटेलिजेंस की, जो हमने पढ़ा है उसको ओन वर्ड्स में प्रेजेंट करने की, तो हमें दिक्कत हो जाती है, राइट? इसीलिए पिक एंड स्पीक में जब सब्जेक्ट आया तो क्या बात करना है ये रेडी नहीं था तो कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही जो जो चीजों में हमें कंफ्यूजन होगा, जिन जिन चीजों में प्रॉब्लम आएगा, उस पर सॉल्यूशन के लिए हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे इंटेलिजेंस को अच्छे से डेवलप करेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक? अब ये एक्टिविटीज आप थोड़े से घर पे करते रहना। ओके, आप कोई भी 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर चिट्स बनाना, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके बच्चों को कोई भी रैंडम चिट्स बनाकर दे दीजिए। दिन में एक बार ये एक्टिविटी घर पर करवाइए, तो वो फिर ना हमेशा कहीं पर भी जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। कोई घर में नया आता है तो ओपनली बात कर पाएंगे, कोई भी चैलेंज आता है तो उसे फेस कर पाएंगे। आई गेस एक्टिविटी में हम बहुत सारा टाइम दे सकते हैं, बट वेबिनार के लिए हमारे पास वक्त कम है। सो एज ऑफ नाउ मैं एक्टिविटीज यहाँ पर हमारी फिनिश होगी ऐसे कहता हूँ, बट किड्स ऐसी एक्टिविटीज घर पे आप करते रहना। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Now we move on to the most interesting part of our webinar, the question answer session. Over to you, Sarika miss. Thank you, Nikita. Good morning, everyone. Sir has made us aware of all the intellectual stages which play a crucial role in the development of child. Sir has also focused on different areas of wholesome development, with not just focusing on academics, but also enhancing their talents and creativity. So now let's start with the explorative round with the question and answer session. I request Khushi Jain to ask her question. Over to you, Khushi. Good morning, everyone. My name is Khushi Jain. I study in 9th. Sir, my question to you is, who is the smart kid? Can you please elaborate? Nice question, Khushi. Sir, क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्मार्ट किड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कौन से बच्चों को हम स्मार्ट किड कह सकते हैं? अगर बच्चा पढ़ाई में होशियार है तो ही उसे स्मार्ट किड कहना कितना उचित है? ओवर टू यू सर। स्मार्ट किड के बारे में खुशी ने जो क्वेश्चन पूछा, इट इज रियली अ नाइस क्वेश्चन। अब जैसे हमने एक्टिविटी स्टार्टिंग में लिए, अब इन बच्चों से तो मैं ज्यादा मिला नहीं हूँ, इन्हें जानता नहीं, बट मैं तो सोचता हूँ कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होंगे, राइट? बट थोड़ा सा एक्टिविटी के बाद क्या हो गया, थोड़े से नर्वस हो गए, डर गए और परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे आ गया। तो स्मार्ट किड के डेफिनेशन को समझने के लिए है ना, थोड़ा सा मैं जो बातें अब कहने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। एक स्मार्ट किड मेरे हिसाब से कौन है, या जो ग्रेट साइंटिस्ट हो गए, इन्होंने भी इसमें के बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना मुझे देने के लिए हेल्प की, इनके राइटअप्स में मुझे वो मिले। तो इन्होंने कहा सबसे पहले जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है ना, वो स्मार्ट किड होता है। हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट जो उन्हें अच्छे से सॉल्व करता है बिना डरे, वो स्मार्ट किड है। जिनके पास क्रिएटिव थिंकिंग है, हर चीज को अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, जो सारी टीम को एक साथ लेकर चलते हैं, अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते हैं। इनको पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा काम दूसरों से भी करवाना है, टीम को एक साथ लेकर कैसे चलना है, अगर मेरा कोई टीममेट बीमार है तो उसके काम मैंने कैसे करने हैं, जो एक सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, जब जरूरत पड़े तो अपने टीम में लीडर का काम करता है, जिसको हर चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढना अच्छा लगता है, या इसके साथ साथ हमेशा सुनकर भी लेता है। ऐसे नहीं कि मेरा टर्न हो गया, चलो अब मेरा काम हो गया ना, सामने वाला क्या कह रहा है मुझे लेना देना नहीं। जिसके लिसनिंग स्किल्स बढ़िया है, जो मेरी क्या गलती हुई और उन गलतियों से सीखता है, और साथ ही साथ में रोज ट्राई करता है कि मैं कुछ नया सीखूं।
तो ये हमेशा सीखने वाला जो बच्चा होता है उसे हम स्मार्ट किड कहते हैं। यानी क्या, जो आज के एक्टिविटीज में हमने देखा कि हम जिस जिस स्किल में थोड़ा सा पीछे जा रहे थे, उन स्किल को जब हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे उन पर वर्क करना शुरू करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे कि हर एफर्ट को बीच में छोड़ेंगे नहीं, एफर्ट्स करते रहेंगे, जब ये सब आप स्टार्ट करना कर दोगे तो आप अपने आप स्मार्ट किड हो जाओगे। सो स्मार्ट किड के लिए ऐसे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। जब आप एफर्ट्स लेना शुरू कर देते हो, अपने गलती पर काम करना शुरू कर देते हो, आप स्मार्ट किड बनने लगते हो। Thank you, sir. We can say that no kid is unsmart. Every kid is a genius. Our job is to find his talent and motivate him in the right direction. Now, I request Dev Oswal to ask his question. Over to you, Dev. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Dev Osman. I study in Standard 9. Sir, my question to you is there anything like God-gifted intelligence? Yes. Sir, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस में गॉड्स गिफ्ट, भगवान का उपहार जैसी भी कोई चीज होती है? ओवर टू यू सर। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉड गिफ्ट होता है इंटेलिजेंस। तो आपने कभी कभी है ना टीवी पर या न्यूज चैनल पे कुछ बच्चे देखे थे, बीच में कौटिल्य नाम का बच्चा बहुत फेमस हो गया था, सो ही वाज गिफ्टेड चाइल्ड। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गॉड गिफ्ट ऐसे इंटेलिजेंस में कुछ नहीं होता। आप सब ना आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब ये गॉड गिफ्ट नहीं है तो इंटेलिजेंस क्या है? तो देव, आपने जो मुझे पूछा ये गॉड गिफ्ट नहीं है तो ये क्या होगा, तो जैसे हमारे पेरेंट्स से, आप सब बड़े बच्चे हो, आपने डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो क्या होता है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो डीएनए हमें ट्रांसफर होता है उससे हम कुछ चीजें सीख कर आते हैं, थोड़े से इंटेलिजेंस हमारे पास होते हैं। बट जब हम छोटे हैं तो हमें जैसे एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे दोस्त मिलते हैं, जैसे हमें सीख मिलती है, तो उस अपब्रिंगिंग का हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सो इंटेलिजेंस के साथ पूरा कोई ऐसे गिफ्टेड इंटेलिजेंट पर्सन बॉर्न नहीं होता। हम सबका ब्रेन सेम है, ऐसे तो नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसका ब्रेन बहुत बड़ा है या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, उसके पास 2 ब्रेन है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। एनवायरमेंट, हमारे सिचुएशन कैसे है, सराउंडिंग कैसी है, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा कि एफर्ट्स लेते हुए रहना और कंटिन्यू ढूंढना कि हमें कहाँ डेवलपमेंट करनी है, ये अगर हम करते हैं तो कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है, कोई भी पर्सन इंटेलिजेंट बन सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं तो इंटेलिजेंट नहीं बन सकता क्योंकि इंटेलिजेंस तो गॉड गिफ्ट होता है, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम धीरे धीरे डेवलपमेंट कर सकते हैं। Okay, next question. Thank you, sir. After hearing sir, I feel every child is gifted. They just unwrap their packages at different times. Now, I request Pranali to ask her question. Over to you, Pranali. Good morning, everyone. My name is Pranali Samal. I study in Standard 9. Sir, could you tell us how is IQ different from multiple intelligence? सर, क्या आप बता सकते हैं कि IQ और मल्टीपल इंटेलिजेंस ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? ओवर टू यू सर। प्रणाली, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हुआ है, सिंस लास्ट 30 और 40 इयर्स, जब मैं बॉर्न भी नहीं था तब ना ये IQ बहुत ज्यादा सब लोग समझते हैं, या हर पर्सन की IQ टेस्ट करना, उसके अकॉर्डिंग उसने किस फील्ड में जाना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, ये सब ढूंढने के पीछे हम भागते हैं। बट एग्जैक्टली अगर IQ को आप देखोगे तो IQ आपका हर काइंड का इंटेलिजेंस नहीं ढूंढता, राइट? अगर आप कभी IQ टेस्ट देने जाओगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, कितना अच्छा डांस कर सकते हो, राइट? अब सचिन तेंदुलकर को अगर आप देखते हो तो सचिन कभी भी एजुकेशन या पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो सचिन अगर 10th पास नहीं हुए तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। उनका IQ अगर लो आ गया तो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं रहेंगे ना। तो इंटेलिजेंस और IQ ये दोनों अलग चीजें हैं। IQ क्या पता चलता है, IQ से क्या पता चलेगा, तो आप लॉजिक कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है ना, राइट? लॉजिक तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमने 500 की नोट दे दी और कितना पैसा वापस आना है ये हम काउंट ही नहीं कर पाए, ये हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। ऐसे नहीं बोलना घर जाके, दिनेश सर ने बोला ये IQ वगैरह जरूरी नहीं होता, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं सचिन बनूंगा। नहीं, IQ बहुत जरूरी है।
राइट? बट आईक्यू मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक छोटा पार्ट है जो आपके लॉजिक को समझता है। ओके, बट लॉजिक के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी जरूरी है, राइट? लॉजिक से आपको क्या पता चलेगा, कैलकुलेट कैसे करना है, बट अगर आपके पास लिंग्विस्टिक एबिलिटी हुई तो ही आप सामने वाले को समझा पाओगे। अगर वही नहीं है तो हाँ, मुझे इक्वेशन पता चल गया बट मैं सामने वाले को बता ही नहीं पा रहा हूं, तो ये सही रहेगा नहीं। लॉजिक आपको पता है कि आपने साइकिल कितने स्पीड से चलानी चाहिए तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, बट आपके हैंड्स और लेग्स उतने अच्छे से मूव नहीं हो रहे हैं, तो चलेगा नहीं। सो आईक्यू जो है ना, वो आपके सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग को बताता है, राइट? आईक्यू से हमें पता क्या चलेगा कि आप मैथ्स कितने अच्छे से कर सकते हो, आप दो चीजों के बीच के कोरिलेशन को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। बट आईक्यू टेस्ट देते हुए क्या होता है, जैसे आज हो गया ना, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी ऐसे फील हो रही, अरे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप में से बहुत लोग थे जो नीचे शायद डेस्क पर या नीचे ना अपने फुट को ऐसे मूव कर रहे थे, फिंगर्स से कहां पर फिजिट कर रहे थे, हाथ में कुछ चीजों को लेकर खेल रहे थे। तो ये क्यों होता है, जब भी कोई नई चीज आती है ना, आप ही नहीं, ये सेशन अब चल रहा है ना, तो यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम होगी, उनको भी सेशन खत्म होने तक ये एंजाइटी फील होती है, ये स्ट्रेस फील होता है, राइट? मुझे भी फील हो रहा है कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो ये तो सबके पास होता है। तो आईक्यू टेस्ट देते वक्त भी बहुत बार हमारा मूड डाउन हो जाता है, तो आंसर गलत हो जाता है और हमारा स्कोर गलत आ जाता है। इसीलिए आईक्यू टेस्ट से मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, या मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, ये अच्छी तरह से हमें पहचान सकता है कि हम क्या है, और इसमें सारे इंटेलिजेंस कवर्ड है। तो मैं आपको सिर्फ मैथ्स का रिजल्ट बताऊं तो आपका पूरा ईयर का पूरे रिजल्ट का परसेंटाइल आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथ्स के रिजल्ट से? नहीं। आपको लैंग्वेज में कितना स्कोर था वो भी पता होना चाहिए, आपको हिस्ट्री में कितने थे वो भी पता होना चाहिए। सो आईक्यू से ऐसा समझ लीजिए कि आपको साइंस और मैथ्स के मार्क्स पता चल रहे हैं, ड्राइंग के पता नहीं चल रहे, हिस्ट्री के पता नहीं चल रहे, ज्योग्राफी के पता नहीं चल रहे। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस में जाते हैं। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आप क्या हो, कैसे हो, ये आपको पूरा ग्राफ जो है बता देती है, और हमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मिलने लगता है। थैंक यू। Thank you, sir. Every child is different and we should celebrate their differences. We should focus on the strength in every single child rather than looking at what is missing. Now, I request Mangal to ask his question. Over to you, Mangal. Good morning, everyone. My name is Mangal Jain. I study in 9th standard. Sir, my question is, why should we work on the development of multiple intelligence? And also, what is the significance of multiple intelligence development? Sir, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का विकास करना क्यों जरूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है? Over to you, sir. बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सो अब ना इस चीजों को हम थोड़े प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं। समझिए, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को 10th में 100% मिल गया, आजकल मिलते हैं ना 100% लेकर वो पास आउट हो गए। 12th गए, 12th भी उन्हें अच्छा रिजल्ट आ गया, चलो ग्रेजुएशन भी अच्छे मार्क्स से कर लिया, डिस्टिंक्शन एकदम टॉपर है, बट चले गए एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए। ओके, अब इंटरव्यू के लिए आपके सामने इंटरव्यू आपके लेने वाले बैठे हुए हैं, और उन्होंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको सारी चीजें याद तो है, बट क्या हो जाता है, प्रेशर फील होता है, और थोड़ा सा हमें पसीना आने लगता है, और हम सारी चीजें भूल जाते हैं, हम ब्लैंक हो जाते हैं, राइट? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होते हुए भी हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा, और हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए। बट वहां पर एक पर्सन आया जिससे मिले 90% ही थे, सेकंड आया था समझो वो। ओके, वो गया, वहां पर गया, एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, और वो बहुत इजीली बातें कर रहा है, उनको सारे आंसर्स दे रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। तो जॉब किसे मिलेगी, जिससे 100% थे या जिससे 90% थे? 90% वाले को। क्यों? तो क्योंकि उसने बात की। तो क्या होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के डेवलपमेंट से हम क्या करते हैं ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की लेवल को हम पता कर लेते हैं, और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि हमें कहां डेवलप करने की जरूरत है। अब आज के छोटे से एक्टिविटीज के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि हम सबको हमारे लिंग्विस्टिक एबिलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट? हम सबको बोलना अच्छे से आना चाहिए, कंटिन्यूअसली किसी भी चीज को बताना आना चाहिए, हमारे फियर को कम कर देना जरूरी है। सो जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को डेवलप करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, राइट?
हम बहुत अच्छे से चलते हैं, सामने वाले से अच्छे से बात करते हैं, सामने वाला किस समझ लेते हैं और उस अकॉर्डिंग उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हेल्प होती है हमारे करियर सिलेक्शन में, राइट। समझो कि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर में ड्राइंग स्किल्स अच्छे और विजुअलाइजेशन अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। बट मैंने वो नहीं किया, मैं चला गया डॉक्टर बनने, तो मैं अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा? नहीं, मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बट जो स्किल मेरे अंदर पहले से है, अगर मैं उसे यूज करूंगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं इजीली अचीव कर पाऊंगा और अच्छा बन पाऊंगा। जैसे शंकर महादेवन जी है, वो बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर और सिंगर थे, बट वो आईटी में चले गए, आईटी में जॉब भी किया 7 इयर्स। बट 7 ईयर जॉब करने के बाद कहाँ कहाँ उन्हें लगता था, नहीं यार मैं तो ये नहीं कर सकता, ये तो मेरा काम नहीं है, मुझे तो गाने गाना पसंद है। तो उन्होंने वो जॉब क्विट करके दूसरे फील्ड में वो चले गए। तो क्या होता है, ये जो हमारा टाइम वेस्ट होने वाला होता है ना, ये नहीं होता। हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। आजकल क्या हो गया है, हम ना मैथमेटिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कैलकुलेशंस ऐसे कर लेते हैं, बट इमोशंस की बात आती है तो हम हैंडल नहीं कर। किसी ने हमें डांट दिया तो हम वो डाइजेस्ट कर नहीं पाते, किसी की केयर लेना हमें अच्छे से आता नहीं, राइट। तो हमारा जो मल्टीपल क्वेश्चन वाला एक सीन होता है, जैसे अभी आपने आईक्यू कहा ना, वैसे और 4 क्वेश्चन है। एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, अपने फीलिंग्स को समझना, सामने वाले के फीलिंग्स को समझना, ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से डेवलप होता है। एक होता है एडवर्सिटी क्वेश्चन, कि कोई भी उल्टी सिचुएशन आ गई ना, तो उसको कैसे फाइट बैक करना है, राइट। से आप घर जा रहे हो, घर जाते हुए आपकी साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है, तो आप क्या करोगे? एक तो वहां पे बैठ के रोने लगोगे, क्या ये एडवर्सिटी है? अरे मेरा साइकिल का टायर तो पंक्चर हो गया, ऐसे रोकर कुछ होने वाला है? तो ये एडवर्स सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक तो उस साइकिल से उतर जाते हैं, साइकिल को घसीटते घसीटते घर लेके जाएंगे, या फिर अगर पॉकेट आए हुए हो तो हम पंक्चर वाले के पास जाएंगे, पंक्चर निकालेंगे और घर जाएंगे। तो ये किसी भी सिचुएशन में फाइट बैक कैसे करना है, या एडवर्सिटी क्वेश्चन क्रिएटिव वेज हमें सूझने लगते हैं, राइट। आपको सूझते होंगे ना कि जैसे बीच में पबजी या फिर आपका फेवरेट गेम ब्लॉक हो गया, तो आप सबने वीपीएन यूज करना शुरू कर दिया था, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहां से आती है? एडवर्सिटी से। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसे डेवलप होगा तो आपका एडवर्सिटी को फाइट बैक करने का रिस्पॉन्स अच्छा होने लगेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन। हर चीज को करने के तो अलग अलग तरीके होते हैं, तो कौन से तरीके से करने के बाद हम, होता है कि हमारे सारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, मॉम डैड के साथ, दोस्तों के साथ, तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत बार होता है ना कि दोस्त हमें चिढ़ाते हैं बट हमें उन्हें आंसर करना नहीं आता, बट जैसे बोल देते हैं और दोस्ती खराब हो जाती है। तो हमें अच्छे से वर्बली कम्युनिकेट करना आने लगता है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आने के बाद भी यहाँ के न्यूज आर्टिकल रीड कर रहा था। कल हमारे परमार जी के साथ हमारी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है, जिस एक्टिविटीज में आपके पास ऊपर लैंग्वेज लैब है। तो ये, इससे आप टास्क या करना है इसलिए मत कीजिए, इससे डेवलपमेंट के स्कोप से आप देखते हो तो आपका इंटेलिजेंस डेवलप होने लगेगा, राइट। आपके पास यहाँ पर अभी अलग अलग, आई गेस नेशंस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हो, तो वैसे प्रोग्राम से आपके इंटरपर्सनल एबिलिटी, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। गणेशा आइडल मेकिंग हुआ, जिससे हमारी किनेस्थेटिक एबिलिटी बढ़ती है। एबिलिटीज बढ़ाने वाली चीजों से क्या होता है, हम सारे फील्ड में डेवलप होते हैं। आए तो डर लगने लगे, राइट, नहीं चाहिए। तो एज ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीजों से होता है। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thanks for the information. Anything that is worth teaching can be presented in many different ways. We should spend less time ranking children. Nikita teacher to ask a question. Over to you, Nikita.
Thank you, Sarika Miss. How to develop multiple intelligence and how can parents help to develop the multiple intelligence of their child and also track their progress? सर, बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस को पेरेंट्स कैसे विकसित कर सकते हैं और पेरेंट्स बच्चों के प्रगति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब तक तो हमने बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस जरूरी क्यों है, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्या पता चलता है, कौन सी चीजें डेवलप हो सकती है। बट अब जो क्वेश्चन आया है ना, ये बहुत जरूरी है कि इसे बच्चों में डेवलप कैसे करना है। अब ऐसे तो नहीं होगा मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी और धीरे धीरे आपका इंटेलिजेंस बढ़ने लगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना है ये मैं बताता हूँ। सो डियर पेरेंट्स, आजकल क्या हो गया है कि हम सब बहुत बिजी हो गए हैं, राइट? वी आर बिजी इन डूइंग नथिंग। आप काम में से घर आते हो, घर पर आने के बाद क्या होता है, आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन में काम किया है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, तो आपके पास ना आपका मोबाइल आ जाता है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हो, राइट पेरेंट्स? उसके बाद आपकी फेवरेट टीवी सीरियल देखते हो या फिर न्यूज देखते हो। तो आप बच्चों को टाइम कब देते हो? तो आजकल हमारा टाइम देना चॉइस ना होते हुए भी कम हो गया है। तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चों के पास कौन से इंटेलिजेंस है, बिकॉज हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया होता। सो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। सबसे पहली जरूरत है एक हेल्थी पेरेंट, राइट? टीचर का और बच्चों का रिलेशन बहुत अच्छा है आजकल, बट यही रिलेशन पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने बच्चे को अच्छे से समझ लेना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की उनकी करंट लेवल को समझना बहुत जरूरी है। तो ये करंट लेवल हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले इस लेवल को समझने के लिए कुछ टेस्ट या टूल्स अवेलेबल है। अगर आप आपके बच्चे के ऐसे कोई टेस्ट करवाना चाहते हो, अब ये यहां पर मैं बताने जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, बच्चों के हम इंटरव्यूज लेते हैं, जिनसे बच्चों के हर स्टाइल या हर लर्निंग मेथड के बारे में पता चलता है। जिससे मिलता क्या है, तो ये बच्चा कौन से इंटेलिजेंस में आगे है, कौन से इंटेलिजेंस पे वर्क करने की जरूरत है। देखिए, बच्चा पीछे कभी नहीं होता, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है ये हमें ढूंढना होता है। उसके बाद बच्चों से कुछ एक्टिविटीज करवानी होती है। अगर अभी मैंने कहा कि मैंने इन बच्चों से ओरली पूछा, अगर मैंने पिक एंड स्टिक पे इन्हें कुछ ड्रॉ करने बोला होता, तो जिनका विजुअल बहुत अच्छा है ना, वो शायद कुछ अच्छा ड्रॉ करके मुझे दे सकते, राइट? अगर कुछ बच्चे हैं जिन्हों मैं मोनो एक्ट करने के लिए बोलूं, तो इस पर कुछ डायलॉग्स लिखेंगे, एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और इसके ऊपर एक मोनोलॉग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर बच्चे की लर्निंग मेथड और प्रेजेंटिंग मेथड से आगे जाना बहुत जरूरी है। कुछ सिंपल टेक्निक्स बताता हूं। जैसे लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वीक लग रहा है, तो हम ब्रेन पजल सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड पजल्स खेल सकते हैं, रूबिक क्यूब आता है, चेस हो गया, ऐसी चीजें कर सकते हैं। अगर किसी का विजुअल इंटेलिजेंस कम है, उसे देखने के बाद भी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उनके साथ हम मेमोरी गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, मेंटल मैप बना सकते हैं सिटी का, या फिर एक सिंपल टेक्निक। अभी क्या कीजिए, जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं ना, आप आपके हाउस होल्ड का एक मैप बनाने लीजिए। तो आपके बिल्डिंग के सराउंडिंग में क्या है, आपके स्कूल से आपके घर तक का रास्ता कैसा है। जो बस से जाते हैं वो भी कर सकते हैं, वो तो बस से यहाँ वहां देखते ही होंगे कौन से शॉप्स जा रहे हैं, क्या कहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसी चीजों को ड्रॉ करने लीजिए। ऐसी चीजों से हमारा विजुअलाइजेशन बढ़ता है, हम चीजों के इमेज कैप्चर करके उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं। अगर किसी का इंटरपर्सनल वीक है, समझो, अब इंटरपर्सनल यानी क्या, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, तो उन्होंने क्या करना है, अपने बिल्डिंग में, सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं उनको साथ में लेकर बैठिए और टीचर टीचर खेलिए। एक ने टीचर बनना है, बाकी के बच्चों को सिखाना है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इन बच्चों को बिठाइए और कुछ स्टोरीज सुनाइए, इन्हें सुनने की आदत लगाइए, इन्हें टीम में खेलने के लिए मजबूर कीजिए। मजबूर करना पड़ता है, क्योंकि जिनका इंटरपर्सनल थोड़ा सा वीक होता है ना, ये बच्चे मिक्सअप नहीं होते। और आजकल तो बड़े बच्चे इसके लिए टर्म यूज करते हैं, आई एम इंट्रोवर्ट। तो बच्चों, ऐसे इंट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, आपको खुद पर काम करने की, कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत होती है। फिर जिनका लिंग्विस्टिक वीक है, आप क्या कर सकते हो, तो आप वर्ड गेम्स खेलिए, एक बुक क्लब ज्वाइन कीजिए,
टीचर से कहिए कि टीचर मुझे मेरे लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाना है, तो टीचर भी आपको कुछ नए नए ऑप्शंस दे सकते हैं। पेरेंट्स, आप इन बच्चों को है ना लाइब्रेरी ज्वाइन करवाइए, इनके साथ आप भी रीडिंग कीजिए, और रीडिंग बुक में कीजिए, मोबाइल में मत कीजिए। किंडल आप यूज करते हो तो ठीक है, बट मोबाइल में किंडल सॉफ्टवेयर डालोगे तो बच्चे मल्टीटास्किंग करते हैं। आप सामने आते हो तो किंडल ओपन होगा, आप जाते ही इंस्टाग्राम हो जाएगा। सो पेपर बुक्स या फिर हार्ड बाउंड बुक यूज कीजिए। उसके बाद जिनके इंट्रापर्सनल वीक है, जिनको कभी लगता ही नहीं कि मैं कोई चीज कर पाऊंगा, राइट, मुझ में एबिलिटी है, स्किल है, ये एक्सेप्ट करने में जिनको मुश्किल आ रही है, तो आप सबसे पहले डायरी लिखना वो शुरू कर सकते हैं। इनको सोशल हॉबीज डेवलप करना जरूरी होता है, लोगों के साथ बात करना, और सबसे एक शांत जगह पर बैठना, दिन में मुझसे क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ ये चीजें लिखना। तो जब ये चीजें वो शुरू कर, धीरे खुद को पहचानना शुरू कर देंगे। और खुद के एबिलिटीज पता सबको होती है, बट डर लगता है थोड़ा सा, राइट, कि बाबा मुझसे गलती हो गई तो सब मुझ पे हंसेंगे। तो ये फियर उनका कम करने के लिए एक्टिविटीज करना जरूरी होता है। अब जिनका किनेस्थेटिक वीक है, जो घर पे जाते ही सोफा पे एकदम तकिए की तरह गिर जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि बच्चा कौन है सोफा कौन है, होता है ना पेरेंट्स, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, इनको दिन में एक बार प्लेग्राउंड पर लेके जाना है, इनके साथ साइंस एक्सपेरिमेंट वाले सेंटर दिखाइए, इनको गार्डनिंग करने लगाइए। कुछ नहीं होता है, डस्ट एलर्जी वगैरह बहुत रेयर होता है, ठीक है, और डस्ट एलर्जी है तो मुंह पे 3 लगाइए, फिर भी गार्डनिंग करने बोलिए। ऐसे ही रूम में बंद कर दीजिए, कोई भी रैंडम सॉन्ग लगा दीजिए और डांस करने बोलिए। जब ये ऐसे एक्टिविटीज करने लगेंगे ना, तो इनके ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगेगा। सिंपल वे में, अगर बच्चे आपके छोटे हैं ना अभी, जिनके बच्चे जूनियर सीनियर में है, वो बच्चों के साथ ना एक नॉर्मल सॉफ्ट बॉय से कैच कैच खेलना शुरू कर दीजिए। क्या होता है, बॉल कहां से आ रही है उसका जजमेंट आने लगता है, वो हाथ में पकड़ने लगते हैं, और बॉडी जो है वो मोबाइल होती है, बॉडी मूव होती है। बाद में आता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, ये तो आजकल बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है, कभी कभी खिड़की से या बालकनी से हम कचरा नीचे फेंक देते हैं, या फिर पानी में कुछ भी मिक्स कर देते हैं, ट्रीज तोड़ने का मूड होता है। तो ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बढ़ाना है ना, तो बच्चों को, पुणे के आसपास ना बहुत सारी प्लेसेस है जहां पर हार्डली आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो, और बच्चों को नेचर वॉक्स पर लेकर जा सकते हो। बच्चों को पता चलने दीजिए कि ट्रीज क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ बुक्स में नहीं। अब ऐसे पहले एक्टिविटी में आपने देखा, जब बच्चों को फार्मर का इंपॉर्टेंस पूछा, तो बच्चों का साइंस तो बहुत अच्छा था, तो विटामिन सी डी तक पहुंच गए, बट फार्मर्स रोल जो प्ले करते हैं उस पर उन्होंने 3 सेंटेंसेस कहे, राइट। तो ये जब नेचर के बारे में और अच्छा पता चलेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस हर चीज के बारे में जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। घर पे बर्ड फीडर वगैरह वाले छोटे छोटे एक्टिविटीज कीजिए, धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। फिर लास्ट इंटेलिजेंस समझो, जिनका म्यूजिकल वीक है, तो उसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को कॉन्सर्ट लेके जाइए, अच्छा म्यूजिक बच्चों को सुनाइए, बच्चों के साथ बैठकर सॉन्ग्स या पोएट्री लिखिए। क्या होता है, जब बच्चा सॉन्ग या पोएट्री लिखने जाता है ना, तो उन्हें उनकी वोकैबुलरी बढ़ानी ही पड़ती है, क्योंकि अब मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, वो अगर मुझे किसी छोटे से वर्ड्स में अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे 10 वर्ड्स को एक साथ लेके आने वाला एक छोटा वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से क्या होता है, बच्चे खुद से रिसर्च करने लगते हैं, डू योर ओन रिसर्च, ये बच्चों में अपने आप जाने लगता है। तो पेरेंट्स ने करना क्या है, सबसे पहले टाइम देना है। ओके, अगर आप अभी बच्चों को टाइम नहीं देते, तो कल बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे, ये मैं ओपन माइक पर कह रहा हूं, ठीक है। क्या होता है, अगर आप इस अर्ली एज में आपके बच्चों को सारे गैजेट्स और लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हो, बट टाइम नहीं दे रहे, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे और बच्चे बड़े हो जाएंगे, अर्न करने लगेंगे, तो वो भी आपको लग्जरीज देने की कोशिश करेंगे। आपके रूम में शायद एसी होगा, बट बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे, बच्चे आपको पूछेंगे हाँ क्या चाहिए, बेटा आज घूमने चलोगे, नहीं पॉसिबल नहीं है, आप जाके हो, मैं आपके लिए कार बुक कर देता हूँ। तो आप सोचिए, ड्राइवर के साथ कार में जाना अच्छा है या बच्चों के साथ बस में जाना अच्छा है। सो बच्चों को टाइम देना शुरू कर दीजिए। सेकेंड थिंग, बच्चों के साथ साथ खुद पर भी डेवलपमेंट के लिए वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ गलती होती है तो बच्चों के सामने सॉरी बोलिए, थोड़ा सा हम्बल बिहेवियर रखिए। स्कूल में आइए, बच्चों के पेरेंट्स के साथ जैसे जैसे ना बॉन्ड बढ़ेगा ना, तो दोस्ती तो हो जाएगी, बट टीचर्स के साथ तो उनकी पुरानी दोस्ती है ना, तो टीचर्स से पूछिए, टीचर्स आपको क्या लगता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या डेवलप करने की जरूरत है, और इनमें डेवलपमेंट हो रहा है ये पता कैसे चलता है, तो बिहेवियर चेंज होने लगता है, राइट। अभी चेंज का सबसे बड़ा आपके सामने स्केल क्या होगा, तो जिस बच्चे को सबके सामने बात करने में डर लगता था, वो अगर कल घर पे कोई गेस्ट आ गए और आपसे पहले जाके उनको अटेंड करे, बिठाए, उनको जाकर पानी दे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि मेरा बच्चा डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, फिर से टाइम। तो टाइम जब भी आप दोगे, आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकते हो। बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस के लेवल आपको समझने हैं,
तो आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए, हम टेस्ट आपको जो है बता देंगे, इन्हें कैसे जज करना है इसका टूल आपको अवेलेबल करके दे देंगे। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज अभिव्यक्ति के पेज पर या मैं पर्सनली शेयर करते रहता हूं, आप इन्हें फ्री में यूज कर सकते हो एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए। छोटे छोटे एक्टिविटीज कीजिए, चेंजेस जो है वो होते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. We as parents and teachers should work together as a team towards creating the best possible learning environment for our children and foster their physical, emotional, and intellectual well-being. Thank you so much, sir. With this, we end with our question and answer round. Over to you, Nikita. Thank you, Sarika Miss. Now I request our principal to share her views. Over to you, ma'am. Thank you, sir. I'm sure today's webinar has really helped us enlighten our thinking process. We as educators, it's our prior duty to ignite the little minds by initiating the thought process. Sir has very clearly and in a defined manner explained us all the levels of development, such as intellectual, kinesthetic, and partial. The interaction with our students have really boosted them. Thank you once again, sir. Over to you, Nikita, for the vote of thanks. Thank you, ma'am. Now, I would like to thank our today's guest, Mr. Dinesh Shetty, sir, for sparing his valuable time with us and gracing this webinar a fulfilling one. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address for today's webinar. I'm thankful to our chairman, Shri Subhashji Parmar, sir, for his guidance and for motivating us. Further, I extend my thanks to our education committee members, our principals, parents, and all our live viewers. At the outset, a big thanks to our technical team for their timely support. Stay connected with us for next Sunday hour. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving your overwhelming response. Thanks to our today's eminent guest. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our team members. Mrs. Jacinta Manuel, Principal. Mr. Kalpesh Darji, Team Leader. Mrs. Sarika Paigude, Teacher. Mrs. Nikita Soni, Teacher. Mrs. Itisha Shah, Teacher. Miss Bhavika Rathod, Teacher. Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Miss Daksha Dhalawat, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.